Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you will be fine and enjoying at your respective homes. Today, our topic is the prodigal son for class 5th subject English. Dear students, please open your book. Open your book, page number 61. Now we are going to read first. Let's try to read. Dear students, please watch this video carefully. Not a long time afterwards, the younger son traveled to a distant land where he wasted his money. He lavishly dined, wined, and gambled. At last, when he had spent even the last penny, he almost starved to death. There came a terrible famine throughout the country that made living harsh. He had no money, no home to live in, and nothing to eat. He badly needed a job. So he went and hired himself to one of the inhabitants of that country, who sent him on his fields to feed animals. He longed to make a meal of the pods the animals were eating, but no one gave him anything. The hunger pangs made him to fall down and he became unconscious. On regaining his consciousness, he thought, how many of my father's hired men have more bread than they want, while I am dying of hunger. I will go to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I no longer deserve to be called a son of yours. Treat me as one of your hired men, and I will work for you. Not a long time afterwards, the younger son traveled to a distant land. कुछ ही अरसे के बाद यानी कुछ ही देर के बाद वो जो बच्चा जो प्रोडिगल सन था, वो जो फजूल खर्च करने वाला बेटा था उस अमीर आदमी का, वो सफ़र करने लगा एक दूर दूर दराज इलाके में. वायर ही वेस्टेड हिज मनी, जहाँ उसने अपने जो वो पैसे उसके साथ थे, जो उसने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी और वो पैसे साथ थे वो वहाँ उसने ज़ाया किए यानी खर्च किए, फजूल खर्च की. ही lavishly dined, wined and gambled. और वहाँ वो ये तो ज़रूरी है जिसके पास पैसे होते हैं वो आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं और गुमराह भी हो सकता है. ही lavishly dined, और उस बच्चे ने भी ऐसा ही किया और उसने वो पैसे खर्च किए, आराम की ज़िंदगी बसर की. वाइनर, शराब पीने लगा और जुआ खेलने लगा. At last, when he had spent even the last penny, he almost starved to death. आखिरकार जब उसने आखिरी पैसे खर्च की थी, जो उसके पास आखिरी को जो सक्का था, आखिरी पैसा था, पेनी था, ही ऑलमोस्ट स्टार्व टू डेथ, जब वो मरने के करीब पहुंच गया, क्योंकि वो भूखे रहने लगा और उसको खाने वक्त पर नहीं मिलने लगा, तो वो मरने के करीब पहुंच गया. There came a terrible famine throughout the country. और जिस मुल्क में वो हिजरत करके गया, भाग गया, वह उस मुल्क में एक ज़बरदस्त कहत आया. That made living harsh, और जो उसकी ज़िंदगी वो मुश्किल से मुश्किल बन गई. He had no money, उसके पास कोई पैसा नहीं था अब. No home, न उसके पास कोई घर था. To live in and nothing to eat, कुछ खाने के लिए, कुछ रहने के लिए, कुछ पैसे भी उसके पास नहीं थे. He badly needed a job, उसको काम की बहुत ज़रूरत थी. So he went and hired himself to one of the inhabitants of that country, और वो एक आदमी के पास चला गया, उसी मुल्क के जिस मुल्क में वो चला गया, उस मुल्क में वो एक आदमी के पास गया और उसको बोला कि मुझे अपने नौकर रखो. Who sent him on his fields, जो उसने उस आदमी ने उसको अपने नौकर रखा और उसको अपने फील्ड्स में भेज दिया. फीड एनिमल्स, ताकि वो अपने जानवरों को चराएगा. He longed to make a meal of the pods the animals were eating. उसने क्या किया, वो खाना बना रहा था, उन सीड पोड्स क्या होते हैं, सीड्स, बीज का जो खाना बना रहे थे उन जानवरों के लिए, जो वो जानवर खा रहे थे,
but no one gave him anything, और उसको कुछ नहीं दिया जाता. The hunger pangs made him to fell down and he became unconscious. जब वो भूखा ही था तो वो एक दिन गिर गया और बेहोश पड़ गया. On regaining his consciousness, जब उसको दोबारा होश आया, he thought, उसने सोचा, how many of my father's hired men have more bread than they want. और उसको ख्याल आया, उसने सोचा कि जो मेरे फादर के पास जो वो सर्वेंट्स नौकर हैं, वो बहुत खाना खाते हैं, जितना खाना वो खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं. वाइल आई हियर आई एम डाइंग ऑफ हंगर, और उसी अमीर आदमी का जो बेटा है, यानी मैं यहाँ भूखे से मर रहा हूँ. आई विल गो टू माई फादर, और मैं वापस जाऊँगा अपने बाप के पास. एंड से टू हिम, उसको बताऊँगा, फादर आई हैव सिन्ड अगेंस्ट हेवन एंड बिफोर यू. ए मेरे वालिद, मैंने आपके खिलाफ और अल्लाह ताला के खिलाफ मैंने बहुत गुनाह किए, मैं बहुत गुनाहगार हूँ. आई नो लॉन्गर डिजर्व टू बी कॉल्ड ए सन, और मैं उसको बोलूँगा कि मैं आपका बेटा के लायक नहीं हूँ, बेटे होने के लायक नहीं हूँ, न मैं इसके लिए मुस्तहक हूँ. ट्रीट मी, और मुझे ऐसा ट्रीट करो, ऐसा मुझे समझो, एज वन ऑफ योर हायर्ड मैन, मैं आपका एक नौकर समझ कर आया हूँ और मैं आपका नौकर ही रहूँगा. एंड आई विल वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए ही काम करूँगा, जो आप मुझे काम बताएंगे मैं वो काम करूँगा. मुझे अपना बेटा मत समझो, क्योंकि मैंने आपके खिलाफ बहुत गुनाह किए और मैंने आपकी नाफरमानी की, और मैंने अपने घर के तमाम जो पैसे थे, जो प्रॉपर्टी बेचकर वो पैसे मैंने वहाँ फजूल खर्ची मैंने की, और मैं माफ़ होने के लायक नहीं हूँ, और इसलिए मैं यहाँ आया और मुझे अपना सर्वेंट समझकर मुझे काम पर लगाओ. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. स्टे होम, स्टे सेफ.